Okay, so we will be starting with the definition of the relation. Okay. Anyone who let me know the definition of the relation we have discussed in the last lecture? What is a relation? Any one of you? Can anyone define relation for me? Relation is what? A set of whose elements are ordered pair. A set, or I will say a class. Very good. A class whose elements are ordered pair. Right? We have done so many examples last time. I will give one of example today also. That is nothing but I can give this trivial example 1 comma 1 1 comma 2 till 1 comma 6, and then similarly the simplest example that we used to do inside probability, right, in the school section. Okay, so this is one of the example of a relation. Now what is the function for us? Yes, what is the function? Yes, anyone remembers the definition of the function? It is important, right? This is something in which we are interested. Our unit is nothing but learning about the functions. Great. Anyone? You can tell me in your own words. आप अपने own words में बताओ. I'm happy with it. Yes. Anyone? A function f from x to y is a relation, right? फंक्शन क्या होता है? तो एक रिलेशन होता है such that f associate each element small x of this capital X, जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं, राइट? डोमेन टू डैश एलिमेंट y of this capital Y, जिसे हम लोग कोडोमेन कहते हैं. अब ये डैश की जगह पे क्या आएगा? चलो, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा आपके लिए. यस, एनीवन? यस, व्हाट? सिंगल, राइट, सिंगल, या फिर आप यूनिक हो. यानी कि फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? इट इज अ मैप, और आई विल से अ रिलेशन बिटवीन वन सेट टू अनदर सेट सच दैट map will associate every element of this domain to a unique or a single element of the codomain. Correct? Then I will give you an example. I give this as an example. My f is from a to x. My a will be what? A will be called as a domain. My x will be called as a codomain. Inside a, I have 4 elements, a, b, c, d, such that my a is getting mapped to x, b is getting mapped to x, c is getting mapped to y, d is getting mapped to y. Will it be a function? Yes or no? That is a question. Yes? Anyone? For a function, we need to check 2 things. First is, it should use every element of, it should use. It is not function. Okay, we will verify. I got one of the answer, it is not a function. We will verify. What 2 things we need to check? We need to check it should use every element of domain. Okay, that is the first thing that we need to check. And the second thing is, we should get single output. Correct? Single output we should get. Each time we should get a single output. So if I see my A is getting used, B is getting used, C, D, for every point in the domain, I can define my f. How can I define? I can define f of A is same as x. My f of b is same as x again. My f of c is same as y. My f of d is again same as y. So I got to know for every point I can define my f. F of a I know, f of b I know, f of c I know, f of d I know. Hence first thing is true. Okay. Second and the most important thing is, over here student gets confused very time. Like the way one of the student got confused right now only. He said it is not a function. But I will say it is a function. Why it is a function? Because for a single input, I am getting a single output. Correct? Why I am saying I am getting single output? Over here you will see my A and B are 2 distinct points which are getting mapped to this single x. When I say it is not a function, if my A is getting mapped to 2 different points, then I will say it is not a function. Because
for a single input I am getting multiple output. But if I tell you in this case, I tell you f of a is x and f of b is also x. But over here you will see for a there is a unique output, yes or no? For a there is a unique output ना. अगर मैंने a को input डाला then my output will be x only. There is no other choice for it. अगर मैंने b को input डाला तो आउटपुट x ही रहेगा, लेकिन वो x तो यूनिक है ना. ऐसा नहीं है कि b डालने पे मेरे पास दो ऑप्शन आता है. लाइक द वे अगर इफ आई टेल यू स्क्वायर रूट इज द फंक्शन, if I tell you square root is the function and I ask you what is the square root of 4, there are two choices. What are those two choices? It could be +2, it could be -2 also. Hence I can conclude my square root is not a function, because for a single input I get multiple outputs. For a function we just need to check for a single input there should be a single output. It might be possible there are more than one input which gives you same output. Like the way in this case, my A and B are the inputs such that they are getting same output x, correct? But that is fine, because I know I am going to put at the time I am going to put only one input. That means once I will put A as my input, then I am getting x. When I will put B as my input, I am getting x as my output. Definitely these two outputs are same, but for a single input I am getting single output. Yes or no? Yes or no? Yes. Okay. So when we say it as a function, whenever after giving a input I should get a single output, which is there in this case. मैंने ये केस जानबूझ के क्यों लिया? बिकॉज मुझे पता था कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला है, इसीलिए मैंने ये केस लिया. अदरवाइज अगर मैं आपको सिंपल वाला केस दे देता कि हाँ एवरीथिंग गोइंग टू द सेम सिंगल पॉइंट्स, देन इट इज रियली ट्रिवियल केस. बट ओवर हियर यू विल सी दिस मैप इज नथिंग बट many to one map. What is the meaning of many to one? That means there are many points which are getting mapped to a single output. That is fine. What is required? It should not be one to many. Means one input should not give you many outputs. This many to one is okay, but this one to many is not okay. That means OM, one to many, OM is not okay, but this MO is okay, correct? That means if there are many inputs giving a single output, still it is a function. But if there is a single input which is giving you many output, then such a kind of map is not a function. Is the idea clear? We will see definitely more examples, but for now is the simple idea clear when it is a function? Yes or no? Yes, sir. Okay, so now we will be thinking about what is a graph of the function. This is definitely not a part of your portion, but since it is literally connected to our topic, we will just see the definition. What is the meaning of a graph of the function? So graph of the function is usually denoted by GF. We will use this notation. That means graph of the function f. This is nothing but set of ordered pair x comma f of x, where my x is nothing but element of the domain A in this case if I consider. Okay, that is nothing, means graph of the function is what? This is nothing but this set. If I want to write in terms of word inside mathematics, I have the definition as let me just find the definition, the correct mathematical definition. If I want, I can write this is nothing but set of ordered pair. Okay, I'll just write my GF, that is graph of f, my graph of f, graph of the function f is the set of ordered pair, graph of the function f is the set of ordered pair x comma f of x, where my x is element of domain. Okay. If I ask you what is my graph for this function, this f, can anyone let me know what is my graph for this function f? F is defined by this definition. Yes, anyone? What is my graph for that function f? Example, as an example we consider this. So what it is actually, this is nothing but set of ordered pair where I will write input in the first place and output in the second place. Okay, so if my A is input, then my X is output, correct? Also if my B is input, my X is output. Similarly C is input, Y is an output, D is an input, Y is an output. So this is actually nothing but graph of the function, this whatever I have defined diagrammatically, this is nothing but graph of that function. Is it okay, the concept of graph? This is not a part of the portion,
but it is much connected to the portions, hence I think that we should consider the definition. Is it fine? What is the meaning of the graph of the function? Yes or no? Just let me know. Yes, sir. Okay. I'm asking other students also. If there is any other doubt, please let me know in the comment section. सिर्फ yes बोल के जाने नहीं देना है. If you have any doubt, please stop me. Okay. So till now, what is the meaning of a relation? Relation is nothing but set of ordered pair. What is the meaning of the function? Function is nothing but a relation or a map that associate every element of the domain to a unique element of the codomain. That means for a single input, there must be a single output. I am repeating again, for a single input, there must be a single output. It might be possible there are multiple input which give you the same output. That kind of a map is called as a many-to-one map. But this one-to-many map is never a function. Many-to-one map can be a function. Okay? Is it fine? The concept, this one to many नहीं होना चाहिए. इसको याद करने का तरीका क्या है? तो मैं इस तरीके से याद करता हूँ. अगर OM है यानी कि ओम है तो वो फंक्शन नहीं बनता है, वो मैप फंक्शन नहीं बनता है अगर वो वन टू मैनी है. अदरवाइज वो हर बार फंक्शन बनेगा अगर वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है. ठीक है. देन वी लर्न व्हाट इज अ ग्राफ. ग्राफ इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑर्डर पेयर जहां पे इनपुट एंड आउटपुट को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं. ओके ओके. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ डोमेन? एनीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डोमेन? द वर्ड डोमेन. You already know what domain is, but I just want to write mathematical definition of it. What is the meaning of domain? I just started it. The other name for the domain that could be used is set of all departure point of the function. We'll use the word domain only. But anyone, what is a domain for the function? Can you define it? Yes, anyone? Domain. Suppose if I give you function is from f is from R to C. What is my domain and what is my codomain? Yes, anyone? What is my domain? Yes. Just let me know what is my domain. Should I define after that? I should ask. While I was giving you the definition of the function, I have already defined what is a domain. If you see over here, f associate each element x inside x, जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं, यानी कि हमारे जो सारे इनपुट्स रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं डोमेन. हमारे आउटपुट्स जहां पे जाएंगे उसे हम लोग कहते हैं कोडोमेन. इज इट ओके? ये चीज पता है आपको? यस और नो? Okay, yes, okay. You guys have answered in the comment section. Great. Okay. So a domain, जिसके लिए और एक नाम है, the set of all departure point of the function is what? Is the set into which set of all inputs of the function, set of all input of the function is constrained to fall. Constrained to fall. This is nothing but a Wikipedia definition. So if in the exam it is asked what is a domain, just define it. You can define this and give some example, right? So it was right. My real number is a domain. Set of all input, it's called as a domain. For now, remember, set of all input is called as a domain, but you can write this proper definition also. Now, similarly, can someone define me what is the definition of codomain? Definitely codomain is nothing but C in this case, but can somebody define me what is a codomain? Similarly, सेट ऑफ इट्स पॉसिबल आउट. बहुत अच्छा बोला आपने. यहाँ पे जो पॉसिबल वर्ड को यूज किया ना वो बहुत अच्छा लगा. कि डोमेन जो होता है उसके अंदर हम बोलते हैं इट इज सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, लेकिन कोडोमेन जो होता है इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, है ना. सेट ऑफ ऑल आउटपुट को कोडोमेन नहीं कहा जाता है. सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट जो रहता है उसे हम लोग कोडोमेन कहते हैं. सो आई जस्ट राइट दैट सेम थिंग. ओके, तो कोडोमेन के लिए दूसरा नाम क्या है? द सेट ऑफ ऑल डेस्टिनेशन ऑफ द फंक्शन इज द सेट into which the set of all output of the function is constrained to fall.
यहां पे आप देखोगे ना तो मैंने क्या लिखा कि मैंने बोला सेट ऑफ ऑल आउटपुट जो रहेगा ना कोडोमेन के अंदर होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोडोमेन इज सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, दैट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑल आउटपुट जो रहेगा दैट विल बी पार्ट ऑफ दिस कोडोमेन। ओके, मेरा जो कोडोमेन होता है दैट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स को उसके अंदर रखता है। इट इज नॉट नेसेसरी ऑल द पॉइंट्स इन द कोडोमेन विल बी माय आउटपुट पॉइंट्स। ओके, लेट अस सी सम एग्जांपल. Before that, let me just give the definition of the range, and let me talk about the examples afterwards. Okay, what is a range? Range जो होता है उसके लिए दूसरा नाम है image of the function, image of f, or I can say range of f is same as image of f. Range क्या होता है पहले मैं define करूंगा, then I will explain, then we'll see many examples. Okay, the range is nothing but is the set of all आउटपुट ऑफ द फंक्शन. जैसे कि उन्होंने कहा था कि यहां पे कोडोमेन लिखते वक्त हमने ध्यान दिया कि हम लोग बोल रहे कि इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट, और रेंज बोलते वक्त मैं बोलता हूं इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल आउटपुट ऑफ द फंक्शन. डिफरेंस क्या हो रहा है कि कोडोमेन जो होता है वो रेंज से एक बड़ा सेट हो सकता है, यानी कि इट माइट बी पॉसिबल सम ऑफ द पॉइंट ऑफ द कोडोमेन आर नॉट द आउटपुट, बट रेंज इज व्हाट, रेंज के अंदर के सारे पॉइंट विल बी माय सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स ओनली. यानी कि अगर रेंज के अंदर कोई एलिमेंट है यानी कि वो किसी न किसी पॉइंट के लिए आउटपुट होगा. सपोज इफ आई डिफाइंड अ मैप A B C D over here x y z. Okay, A B C D x y z such that my A is getting mapped to y, this is getting mapped to it, this is getting mapped to this, and this is getting mapped to it. Okay, first question, is it a function? Yes or no? क्या ये एक फंक्शन होगा? Yes or no? No. Why it is? Because अगर आप देखोगे मैंने C जो है इट इज अ सिंगल आउटपुट जिसके लिए मुझे दो सिंगल इनपुट जिसके लिए मुझे दो आउटपुट्स मिल रहे हैं. बाकी हर जगह पे ठीक है, ए और बी दोनों सेम आउटपुट दे रहे हैं, लेकिन ए और बी के लिए अगर सिर्फ मैंने ए को इनपुट डाला तो मुझे एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है ना. सो ट्रबलिंग पॉइंट क्या है, तो ये सी को मैंने दो जगह पे डाल दिया था, दैट वाज अ ट्रबलिंग पॉइंट. बट अगर मैंने सपोज दूसरा वाला मैप हटा दिया, नाउ आई नो सी जो है वो एक ही जगह पे जा रहा है. हेंस दिस रिलेशन बिटवीन दिस टू सेट इज नथिंग बट माई फंक्शन. ओके, अब इस फंक्शन के लिए हम लोग तीनों चीज डिफाइन करेंगे. जैसे जैसे हम लोग एग्जांपल करेंगे ना वैसे वैसे आइडियाज क्लियर होते जाएंगे. पहले तो मैं लिखूंगा डोमेन. व्हाट इज माय डोमेन इन दिस केस? यस, एनीवन? व्हाट इज माय डोमेन? A B C D, this is nothing but my domain. Similarly, what is my codomain? Yes, it is X, Y and Z. Now the important question arises, what is my range? Yes, what is my range? This is important. Range is nothing but set of all output. While writing codomain, I consider every element in the set. I wrote X, Y, Z. And I note that my X is not an output for any input, right? So X is not an output for any element. But while considering range, I will consider only those elements which are output for some element. Correct? So what is my range? Anyone? Range क्या होता है? तो set of all output. तो सिर्फ मुझे ये देखना है कि कौन कौन आउटपुट है. तो X नहीं है. Y क्या किसी के लिए आउटपुट है? Yes. So this will be the element of the range. Yes, only Y and Z. That is important to learn, right? So कोडोमेन जो है वो हम लोग डायरेक्टली फंक्शन जिस तरीके से डिफाइन होता है उस तरीके से डायरेक्टली आ जाता है. यानी कि क्वेश्चन के अंदर आपको डोमेन और कोडोमेन दिया जाता है, लेकिन रेंज जो है वो फंक्शन के डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, डोमेन और कोडोमेन डायरेक्टली जो सेट होता है वही हमें लिखना होता है, लेकिन जो रेंज होता है दैट इज डिफाइंड बाय नोइंग व्हाट द फंक्शन इज. ठीक है, तो यू विल नोट ओवर हियर कि my codomain is nothing but superset of my range. यानी कि मैं कह सकता हूं मेरा रेंज जो है that is nothing but containing codomain inside it. ठीक है, is it fine? yes or no? यहां पे अगर आप देखोगे तो it is contained inside it. कोडोमेन के अंदर ही रेंज है ना? yes or no? ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे ना, मुझे पक्का पता है कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट्स है. सर डोमेन का आइडिया क्लियर नहीं, कोडोमेन क्लियर नहीं. सबसे ज्यादा डिफिकल्टी रेंज में होती है. तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेके हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करेंगे. ठीक है,
एक बार लेकिन मैं आपको वापस से रिवाइज करता हूँ डोमेन क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है, इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल इनपुट्स जो होता है, जो जिसके अंदर मेरा सेट ऑफ ऑल इनपुट्स रहेगा, उस सेट को मैं कह दूंगा माय डोमेन। कोडोमेन क्या होता है, तो एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर मेरे सारे के सारे आउटपुट्स रहेंगे, सेट ऑफ ऑल आउटपुट इसके अंदर रहेंगे। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि कोडोमेन के अंदर का कोई भी एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है जो किसी के लिए आउटपुट ना हो। यानी कि कोडोमेन एक ऐसा सेट है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि मेरे सारे के सारे आउटपुट्स आएंगे। ओके, रेंज क्या होता है, तो रेंज स्पेसिफिकली अगर डिफाइन करोगे तो इट इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल आउटपुट ऑफ माय फंक्शन इज कॉल्ड एज द रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज की जगह पे दूसरा जो नाम लिया जा सकता है दैट इज नथिंग बट इमेज ऑफ एफ। आगे बढ़ने से पहले मैं रेंज का और एक तरीके से डेफिनेशन देने की कोशिश करूंगा। मैंने क्या कहा, माय सेट ऑफ ऑल आउटपुट इज नथिंग बट द रेंज। ओके, अगर मैं कहूँ मेरा रेंज ऑफ एफ मुझे लिखना है, यानी कि मुझे इमेज ऑफ एफ लिखना है, जिसके लिए नोटेशन है AIMF। इसको अगर मुझे डिफाइन करना है एज ए सेट, तो मैं किस तरीके से डिफाइन करूंगा, आई विल राइट इट इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स वेयर माय एक्स इज नथिंग बट एलिमेंट ऑफ द डोमेन। आई विल जस्ट राइट डोमेन, ए की जगह पे डोमेन लिख देता हूं। ओके ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने रेंज के अंदर क्या किया, मैंने एफ ऑफ एक्स को कलेक्ट करते गया वेयर एक्स इज नथिंग बट एलिमेंट ऑफ द डोमेन। जैसे कि मैंने यहाँ पे y और z किस तरीके से कलेक्ट किया, तो मैंने क्या देखा, y किसी के लिए तो आउटपुट रहेगा ना, हाँ है, तो मैंने उसको कलेक्ट किया। z किसी के लिए आउटपुट है, तो हाँ मैंने उसको कलेक्ट किया इनसाइड रेंज। सिमिलरली हम लोग f ऑफ x क्या होता है, f ऑफ x इज नथिंग बट एन आउटपुट व्हेन x इज नथिंग बट द इनपुट। ठीक है, अब वी विल सी डिफरेंट एग्जांपल्स। बिफोर स्टार्टिंग विद एनी एग्जांपल, पहले तो ये चार में से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं, वो मुझे आप मुझे बताओगे। ठीक है, कंसिडर दिस A। ओके, अगर वो फंक्शन रहेगा तो हम लोग तीनों के बारे में बात करेंगे, उसका डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। ठीक है, लेकिन पहले ए के बारे में डिस्कस करते हैं। आप लोग चेक करो और मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, दिस ए। यस, इट इज अ फंक्शन। दो चीजें चेक करोगे, राइट। सो आई फर्स्ट राइट ए इज अ फंक्शन, ए इज अ फंक्शन। दिस ए के अंदर जो डिफाइन रिलेशन इज अ फंक्शन। क्यों इन्होंने बोला कि फंक्शन है, बिकॉज मुझे पहले चेक करना रहता है कि डोमेन जो है मेरा डोमेन, उसके अंदर के सारे पॉइंट यूज हो जाने चाहिए, राइट। जैसे कि ए यूज हो गया, बी सी डी सारे के सारे यूज हो गए। दूसरी चीज है कि सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट होना चाहिए। ए अगर मैंने डाला तो आउटपुट इज पी, बी डाला तो आउटपुट इज क्यू, सी के लिए आउटपुट इज क्यू अगेन, डी के लिए आउटपुट इज आर। सो अगर मैंने कोई एक चीज डाला तो मुझे सिंगल यानी कि यूनिक आउटपुट आ रहा है, तो यस इट इज अ फंक्शन। अब उसके लिए कोई डोमेन डिफाइन करेगा मेरे लिए, व्हाट इज अ डोमेन इन दैट केस, दैट इज नथिंग बट माई कैपिटल ए सेट, करेक्ट। डोमेन और कोडोमेन हमें क्वेश्चन के अंदर क्लियरली दिख जाता है, यानी कि ये जो सेट रहेगा दैट इज नथिंग बट माई डोमेन, दिस इज नथिंग बट माई कोडोमेन। ओके, तो उसी तरीके से मैं कोडोमेन लिख देता हूँ। उन्होंने मुझे अच्छा बताया कि पूरा सेट बता रहे थे, बट हमने एक बार लिखा तो दूसरी बार ये। अब इंपॉर्टेंट चीज, रेंज क्या है, व्हाट इज माई रेंज फॉर दिस एग्जाम्पल ए, यानी कि फॉर दिस एग्जाम्पल व्हाट इज माई रेंज। Yes. Yes, it is PQR. P, Q and R. These are nothing but my set of all output. P is nothing but output for A, Q is nothing for B and C. दोनों के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं है उससे। R जो है D के लिए। Is it same as my B? This set PQR is same as my B? Correct? Yes. And that is same as my codomain. यानी कि हमें पता चला in the previous example that we consider, हमारे पास क्या था, तो हमारे पास माई रेंज इज नथिंग बट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द कोडोमेन। ये जो हमने एग्जांपल देखा उसके अंदर माई कोडोमेन इज इक्वल टू द रेंज। ठीक है, तो कोडोमेन कैन बी इक्वल टू रेंज और इट कुड बी अ प्रॉपर सुपर सेट ऑफ द रेंज, यानी कि रेंज जो है उसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है या फिर वो इसको इक्वल भी हो सकता है। जब कभी भी माई रेंज इज सेम एज कोडोमेन, वो एक स्पेशल केस बनता है that we are going to learn in the later on lectures। लेकिन अभी के लिए by range and codomain can be same or my range can be a proper subset of a codomain. This is a note. Okay, let's see question number 2. Is it a function, yes or no? No, simply it is not a function. क्यों, बिकॉज आप देखोगे अगर मैंने a को इनपुट डाला तो मेरे पास p and r both are my output. For a single input I am getting multiple outputs. Yes, hence it cannot be a function. C के बारे में क्या कहोगे आप मुझे?
इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज बी के लिए पॉइंट बी अगर मैंने इनपुट लिया, आई डोंट हैव एनी आउटपुट, यानी कि सारे के सारे पॉइंट ऑफ द डोमेन के लिए वो डिफाइंड नहीं है, इसीलिए माई दिस सी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. ओके, फॉर डी इज इट अ फंक्शन? इट इज अ फंक्शन. यस, इट इज अ फंक्शन. क्यों? बिकॉज आपने दो चीजें चेक की. एक तो चेक किया कि हाँ वो सारे के सारे पॉइंट के लिए डिफाइन है, फिर आपने चेक किया हर एक पॉइंट के लिए यूनिक आउटपुट मिल रहा है, तो यस. ओके, डोमेन और कोडोमेन तो उन्होंने दे दिया, तो डोमेन विल बी ए सेट फॉर दिस एंड कोडोमेन विल बी बी सेट, करस्पॉन्डिंग बी सेट. मतलब डी के लिए जो बी सेट दिया है वो रेंज के अंदर हमें इंटरेस्ट है. आप क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करने दिए जाएगा ना, कभी भी डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, तो वो जो सेट दिए जाते हैं वही होते हैं, उसमें चेंजेस नहीं लाने. आपको रेंज के बारे में सोचना होता है. ओके, रेंज क्या है मेरा? ओनली पी क्यू एन आर, दिस आर नथिंग बट सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स. ओके वेट, एंड दैट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ माय कोडोमेन. करेक्ट. इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज सबसेट ऑफ इट बट इट इज नॉट इक्वल टू इट. ठीक है, सो आई गॉट टू नो रेंज इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द कोडोमेन. यहाँ पे रेंज एंड कोडोमेन सेम थे, यहाँ पे प्रॉपर सबसेट में. ओके, सो दिस 4 एग्जाम्पल इज क्लियर. थोड़ा कुछ आइडिया क्लियर हुआ रेंज कोडोमेन का? यस और नो? आगे बढ़े हम लोग. नाउ विल सी मोर एग्जाम्पल. हर एक एग्जाम्पल के अंदर हमें कुछ ना कुछ सीखना है, अलग अलग तरीके से देखना है. बोलिए ना. हाँ बोलिए. अगर वो फंक्शन नहीं होगा तो उसका कोडोमेन और रेंज नहीं निकल सकता ना? निकल सकता है, लेकिन वो क्या होता है ना, अगर कोई रिलेशन फंक्शन नहीं है, नहीं हम लोग निकाल सकते हैं, नो इश्यू, रेंज भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर मैं क्या कहूंगा, दिस इज अ रेंज ऑफ द मैप नॉट अ फंक्शन. समझ रहे हो? हमारा इंटरेस्ट किस में है? तो हमारा इंटरेस्ट है हमें फंक्शन को, हमारा स्टडी क्या करना है, हमें तो फंक्शन को स्टडी करना है ना. इसीलिए मैंने बोला अगर फंक्शन रहेगा तो ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं पढ़ेंगे. बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग रिलेशन एंड मैप्स, वी आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग फंक्शंस. डेफिनेटली सपोज अगर बी के लिए अगर मैं आपको डोमेन कहूँ तो डोमेन क्या होगा? डोमेन ए रहेगा, को डोमेन विल बी बी. रेंज क्या होगा? तो इट इज पी क्यू आर. लेकिन मैं कहूंगा ये सारी चीजें अब एक मैप के लिए है. मतलब दिस रेंज इज फॉर दिस मैप, दिस डोमेन इज नथिंग बट फॉर सम मैप, दिस इज सी, दिस कोडोमेन इज नथिंग बट. मैं फंक्शन के लिए नहीं कहूंगा. यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं? दिस डोमेन फॉर द फंक्शन इज ए, डोमेन फॉर द रेंज इज दिस, ऐसा. ठीक है, बिकॉज हमें इंटरेस्ट है फंक्शन को पढ़ने के लिए, इसीलिए मैं बोलता हूं कि पहले फंक्शन को चेक करो फिर आगे जाओ, है ना. इट इज डिफाइंड, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, सारी चीजें मैप या फिर रिलेशन के लिए भी डिफाइंड होती है, लेकिन हम लोग उसको क्यों नहीं पढ़े? मैप यानी कि रिलेशन. रिलेशन जो होता है उसके लिए दूसरा वर्ड है मैप. रिलेशन क्या होता है ना. मैप पे क्या होता है कि मैप में वो कंडीशन नहीं होता. कोई भी फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट अगर आपने कुछ भी डिफाइन कर दिया ना, दैट विल बी मैप. अगर उसने वो कंडीशन सेटिस्फाई किया, दो कंडीशन, यानी कि डोमेन के हर एक पॉइंट के लिए उसको कुछ ना कुछ डिफाइन है और यूनिक आउटपुट है, तो उस मैप को या फिर उस रिलेशन को हम लोग फंक्शन कहते हैं. तो आप मैप इज सेम एज अ रिलेशन. ठीक है, ओके आगे बढ़े. ओके चलो ठीक है. तो दूसरा क्वेश्चन जो है उसके अंदर मैंने ए और बी दे दिया है और रिलेशन दिया है. रिलेशन क्या होता है? तो दिस इज नथिंग बट अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन. ग्राफ का मतलब क्या होता है कि ये जो है इनपुट होगा 1 एंड आउटपुट इज 7. ठीक है, तो इसको उस तरीके से आपको पढ़ना होगा. पहला क्वेश्चन है कि इज द रिलेशन आर इज अ फंक्शन. अगर वो फंक्शन है तो आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में बात करो, अदरवाइज मत करना. ठीक है, बिकॉज फंक्शन को ही हमें स्टडी करना है, इसलिए मैं पहले बोलता हूं कि फंक्शन चेक करो, अगर होगा तो ही आगे बात करेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट इंटरेस्टेड. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, डज दिस रिलेशन रिप्रेजेंट अ फंक्शन? यस और नो? नो. सिंपली अगर आपको नहीं समझाना तो मैं क्या करता पता है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता, फिर मैं बोलता इनपुट क्या है, तो ए इज नथिंग बट दिस 1 2 3, आउटपुट के अंदर कोडोमेन इज 7 एंड 11. मैं डायग्राम रिप्रेजेंट में क्या करता, तो 1 गेट मैप्स टू 7. मैं इसको पढ़ रहा हूं. अब इसको कैसे रीड करोगे, तो 1 इज एन इनपुट, 7 इज एन आउटपुट, 1 इज एन इनपुट एंड 11 इज ऑल्सो एन आउटपुट. तो मैं सिर्फ इतना बनाता ना तो मैं बोल देता हाँ ये फंक्शन नहीं है. ऑल्सो अगर मुझे आगे ड्रॉ करना है तो मैं इस तरीके से जाऊंगा. ठीक है, तो 2 इज एन इनपुट, दिस इज आउटपुट, 3 इज एन इनपुट, दिस इज एन आउटपुट. ठीक है, लेकिन सपोज अभी इन्होंने जैसे कि करेक्टली बता दिया, इट इज नॉट अ फंक्शन. क्यों फंक्शन नहीं है? बिकॉज 1 इज एन इनपुट जिसके लिए 2 आउटपुट है ना. यूनिक आउटपुट ना होने की वजह से मेरा जो ये रिलेशन है वो एक फंक्शन नहीं होगा.
लेकिन सपोज अगर मैंने इसको हटा दिया, ये जो एक मैप है ना इसको हटा दिया, यानी कि ये 1,7 को मैं डिलीट कर देता हूं, तो क्या ये एक फंक्शन बनेगा? यस सर नो? थोड़ा सोच के मुझे वापस से बताओ, आपने मुझे बोला फंक्शन नहीं है। और एक बार फंक्शन की डेफिनेशन को रिवाइज करवाता हूं मैं। वो क्या बोलता है कि वो हर एक पॉइंट ऑफ द डोमेन के लिए डिफाइन होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 तीनों के लिए वो डिफाइन होना चाहिए। दूसरी चीज कि वो हर एक सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट देना चाहिए। अगर मैंने 1 डाला तो आंसर 11 आएगा, 2 डाला तो आंसर 11 आएगा, 3 डाला तो आंसर 11 आएगा। फॉर एवरी सिंगल इनपुट मुझे सिंगल ही आउटपुट मिल रहा है ना। ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना कि मैंने एक चीज डाला और 2 आउटपुट मिला, ऐसा नहीं हो रहा है ना। गेटिंग द पॉइंट? क्या मिस्टेक हो रहा था? जिन्होंने भी मुझे नो बोला उसको समझा? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ऐसा जो फंक्शंस होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्यों बोल रहा हूं पता है? बिकॉज आप कुछ भी इनपुट डालो फ्रॉम द डोमेन, आपको कोडोमेन से एक ही आंसर मिल रहा है। तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। इट इज अ फंक्शन, यस। अगर मैंने ये वाला लाइन हटा दिया ना तो इट इज अ फंक्शन, ठीक है। इस केस के अंदर डोमेन ए होगा, कोडोमेन बी होगा, लेकिन रेंज क्या होगा? व्हाट विल बी माई रेंज? ओनली सिंगलटन 11 इज माई रेंज, करेक्ट। 7 नहीं आएगा बिकॉज 7 अब किसी के लिए भी आउटपुट नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्वेश्चन एज इट इज रख रहा हूं बिकॉज हमें क्वेश्चन को ही करना था। ओके, तो दिस इज नथिंग बट एन एक्स्ट्रा पार्ट। इफ दिस इज द केस देन इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन और रेंज होगा 11। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? किसी को भी डाउट हो तो अभी पूछो मुझे। आगे बढ़े हम लोग? ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से मैंने डोमेन कोडोमेन दिया, लेकिन इस बार मैंने फंक्शन को जिस तरीके से हम लोग यूजुअली फंक्शन डिफाइन करते हैं ना उस तरीके से मैंने किया, यानी कि माय f of x is same as x square minus 1. Yes, so my a is nothing but 1 2 3 4, b is nothing but this, and this is the case. Okay, so show that f is a mapping from a to b. इसको कैसे शो करोगे? दिस फर्स्ट पार्ट कैसे शो करोगे आप इस चीज को? इट इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। उन्होंने ये नहीं पूछा है फंक्शन ना। मैपिंग का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने वाला रिलेशन होना चाहिए। एनीवन? किस तरीके से मैं प्रूव करूंगा? आई वांट टू शो इट इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। हाउ आई विल शो दिस? मैं क्या करूंगा, मेरे डोमेन में से इनपुट डालते जाऊंगा और देखूंगा क्या कोडोमेन बी के अंदर जाता है कि नहीं। अगर मेरे सारे इनपुट ऑफ ए के लिए मुझे कोडोमेन के अंदर के पॉइंट ही मिल रहा है एज एन आउटपुट, तो उसका मतलब मेरा ये जो मैप है वो ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट तक लेके जा रहा है। हेंस दैट मैपिंग विल बी फ्रॉम ए टू बी। आइडिया क्लियर है? प्रूव करूंगा ये मैं, चलेगा? इसका मतलब क्या होगा? शो दैट एफ इज मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, यानी कि मैं ए में से इनपुट डालते जाऊंगा और आउटपुट चेक करूंगा। आउटपुट अगर बी के अंदर देन इट इज अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी ओनली, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करता हूँ। व्हाट इज माई एफ ऑफ 1? एफ ऑफ 1 क्या होगा? बाय दिस डेफिनेशन इट इज 1 स्क्वायर माइनस 1। ये क्या हो जाएगा? आई एम वेटिंग। हाँ, इट इज 0। एफ ऑफ 2 क्या होगा? चलो डायरेक्टली फटाफट बताते जाओ। 3। एफ ऑफ 4 क्या? एफ ऑफ 3 क्या होगा? 8। एफ ऑफ 4 15। अगर मैं बोलूं सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स that is nothing but 0 3 8 and 15. What is the other name of set of all outputs? Range. यानी कि this is nothing but my range, correct? ये जो range है is it a part of B? Yes or no? Just check B क्या है? Yes, it is a part of B. You will see 0 3 6 8 12 and 15. आप देखोगे मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है? 0 3 8 and 15. Since my range is a subset of B, this implies me my f is a mapping from A to B, is a map from A to B, because मुझे पता चला कि मैंने A से इनपुट डाला तो मेरे जो आउटपुट्स है वो B सेट तक ही जा रहे हैं और कहीं बाहर नहीं जा रहे, ठीक है। सिंपली इस तरीके से आप प्रूव करोगे, ठीक है। B क्या है? ड्रॉ एन एरो डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस मैपिंग, ठीक है। तो एरो डायग्राम ड्रॉ कर लेता। बी इनपुट्स है मेरे 1 2 3 4। आउटपुट जो सेट था उसके अंदर मेरे पास है 0 है 3 6 8
3, 6, 8 and there is 12 also and I need 15 also I think. Okay, so इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, आई थिंक आ जाएगा. ओके, नो इशू. अब आई नो 1 कहाँ पे मैप हो रहा था तो 0 पे, 2 कहाँ पे मैप हो रहा था तो 3 पे. दिस इज गेटिंग मैप टू 8, मैं स्क्वायर करके -1 कर रहा हूँ एंड दिस इज स्क्वायर -1 यानी कि ये 15. ओके, सो दिस इज नथिंग बट एन एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस मैपिंग. बहुत सिंपल सी चीज़ थी लेकिन पूछा था तो लिख लिया हमने. ओके, व्हाट इज अ रोस्टर फॉर्म, ये क्या होता है? एनीवन नो? रोस्टर रिप्रेजेंटेशन आपने सीखा था सेट थियरी के टाइम पे. यस, आई थिंक 9th या फिर 10th में जब थे ना तब आ रहा था ये. रोस्टर फॉर्म ऑफ एनी सेट लिखना था. याद है किसी को किस तरीके से लिखेंगे रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म लिखना यानी कि सेम एज राइटिंग द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, है ना? वो x, y के फॉर्म में लिखते थे ना, दैट इज नथिंग बट द रोस्टर फॉर्म, है ना? ओके, नाउ कोई मुझे बताएगा ग्राफ ऑफ द फंक्शन किस तरीके से लिखूं बाय यूजिंग दिस डायग्राम? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्राफ ऑफ द फंक्शन? यस, एनीवन? क्या होता है उसके अंदर? ऑर्डर्ड पेयर रहता है ना. ऑर्डर्ड पेयर के अंदर क्या होता है? पहले तो आप इनपुट लिखते हो, फिर आउटपुट लिखते हो, फिर इनपुट लिखते हो, फिर आउटपुट, इनपुट आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है, ये ग्राफ ऑफ द फंक्शन रोस्टर फॉर्म. यस सर, नो? इज इट फाइन? ओके, आगे बढ़ते हैं. एक्चुअली अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा कि वी नीड टू राइट डोमेन एंड द रेंज. ओके, डोमेन क्या है मेरे फंक्शन का? व्हाट इज द डोमेन फॉर माई सेट A? That set A, that is 1, 2, 3, 4. What is the range for my this set, this map? Range क्या है? 0, 3, 8, 15. Yes, 0, 3, 8 and 15. You will see कि हम लोग ने यहाँ पे इसको फंक्शन बोला भी नहीं, फिर भी हम लोग ने उसके डोमेन और रेंज के बारे में बात की. तो डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सारे के सारे फंक्शन के लिए ऐसा जरूरी नहीं है. अगर वो फंक्शन नहीं है फिर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बट सिंस वी आर इंटरेस्टेड इन फंक्शन इसलिए हम लोग उस पर ध्यान देते हैं. ठीक है, तो ये जो लास्ट पार्ट है ना वो आप लोग डायरेक्टली लिख दोगे, बिकॉज रेंज तो मैंने यहाँ पे ए के अंदर ही लिख दिया, डोमेन आपको पता ये है. करेक्ट. सो ये हो गया ये क्वेश्चन. सिंपल है, सिंपल. अभी अभी देखोगे ना तो अभी मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया. जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं ये टॉपिक इतना भी ईजी नहीं है, लेकिन दिस इज नथिंग बट समथिंग फॉर यू. रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्या क्या कहा मैंने? तो मैंने डोमेन एंड कोडोमेन दे दिया. ठीक है, R1 इज नथिंग बट दिस सेट, R2 इज नथिंग बट दिस सेट, R3 इज नथिंग बट दिस सेट. ओके, जस्टिफाइड विच ऑफ द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B. आपको जस्टिफाई करना है. तो फर्स्ट इज R1, क्या ये फंक्शन है R1? यस और नो. फिर आप R2 के बारे में बात करोगे, फिर आप R3 के बारे में बात करोगे. अगर है तो भी आपको बताना होगा, अगर नहीं है तो भी आपको बताना होगा कि वो क्यों नहीं है. ठीक है, यस, दिस इज नथिंग बट योर डोमेन, कोडोमेन और ये रहा रिलेशन. ओके, R1 के बारे में कोई मुझे बताएगा क्या ये फंक्शन है? आपको ये पढ़ने को, यस इट इज अ फंक्शन. आपको किस तरीके से पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है A इनपुट, C इज आउटपुट, B इनपुट, D इज आउटपुट, C इनपुट, E इज एन आउटपुट. ओके, फंक्शन के लिए दो चीज चेक करते हो ना, क्या क्या? तो सारे डोमेन के पॉइंट के लिए आउटपुट होना चाहिए. क्या D के लिए कुछ आउटपुट है इन R1? नो. सिंस फॉर D inside A there does not exist any output, R1 is not a function. ठीक है, R1 क्यों नहीं है? यस और नो? ओके, R1 सब लोग को जस्टिफाई हो रहा है कि वो एक फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज यहां पे आप देखोगे D कहीं पर भी इनपुट हो ही नहीं रहा है. अगर मैं R1 को ड्रॉ करूंगा एरो डायग्राम के अंदर, आई विल नो A B C D, यहां पर है A B C D, यहां पर है, यहां पर है C D E F G, C D E F G. A जो है वो C तक जा रहा है, B जो है वो D तक जा रहा है, C जो है E तक जा रहा है, बट ये D के लिए मेरे पास कोई भी आउटपुट में है ही नहीं. इसीलिए R1 इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन. डेफिनेटली रिलेशन के लिए क्या होता है कि सिर्फ ऑर्डर पेयर लिख दिया तो काम खत्म, लेकिन वो एक फंक्शन क्यों नहीं है? बिकॉज D इज एन एलिमेंट ऑफ A सच दैट जिसके लिए कोई भी आउटपुट नहीं है. इज इट ओके विथ एवरीवन? यस सर, नो? ओके,
क्या अब कोई मुझे R2 के बारे में बताएगा, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन डिफाइन करता है कि नहीं? नो आप पहले तो चेक करोगे कि सारे इनपुट आ रहे हैं कि नहीं, यानी ए बी सी डी, पहले तो वो हो गया। लेकिन आप देखोगे ए एक ऐसा इनपुट है जिसके लिए दो डिस्टिंक्ट आउटपुट आपको मिल रहा है, करेक्ट? फॉर अ सिंगल इनपुट यू आर गेटिंग टू डिस्टिंक्ट आउटपुट, सिंस फॉर ए इनसाइड ए there exists C and G inside R2 such that my A is getting mapped to C and G both. Hence, for single input there is multiple output. There are multiple output. Therefore, R2 is not a function. ठीक है, ये फंक्शन के लिए मैं ये नोटेशन यूज करता हूं। R3 के बारे में सोचो, क्या R3 फंक्शन है? यस। किस तरीके से चेक करोगे? तो पहले आप देखोगे कि सारे इनपुट हो रहे हैं। यस, सिंस फर्स्ट थिंग इज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन there exists a element in the codomain, right, such that for every element x of the domain there exists y in the codomain such that your R3 takes x to y, correct? यानी कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ by using this first I am trying to say every input there exists some output. okay, second thing क्या है? For every input there exists unique, ये जो नोटेशन है ना इसका मतलब there exists unique output. ठीक है, अगर आपको चाहिए, फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रहा हूं इसलिए मैं उसके नीचे लिख देता हूं there exists unique. ठीक है, तो इस नोटेशन का मतलब होगा there exists unique. ओके, सो सिंस अगर आप देखोगे ए के लिए सी आ रहा है, बी के लिए डी आ रहा है, सी के लिए ई आ रहा है और डी के लिए एफ आ रहा है, यानी कि हर एक सिंगल इनपुट के लिए सिंगल आउटपुट आ रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चला दिस रिलेशन R3 इज अ फंक्शन, बाकी कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं कर रहे. ठीक है, अब डोमेन, कोडोमेन, फंक्शन और रेंज आइडिया थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? यस और नो? ओके, सो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लोग ये थियरम करने वाले हैं. ठीक है, आज हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव टाइम कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूं, लेकिन आज रीड कर सकता है. करेक्ट, मैं रीड क्या कर रहा हूं, तो हमें पता है फंक्शन होता क्या है. तो आई नो फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशन फ्रॉम सेट टू अनदर सेट सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट इन द डोमेन माई फंक्शन इज डिफाइंड, माई मैप इज डिफाइंड एंड फॉर एवरी इनपुट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक आउटपुट. हम लोग यहाँ पे एक इफ एंड ओनली इफ थियरम करने वाले हैं. इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है कि बोथ द वे इट इज ट्रू, मतलब कि इफ दिस मैप इज अ फंक्शन देन दिस पार्ट इज ट्रू, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है मैं रीड कर रहा हूँ थोड़ी टाइम में, और अगर ये पार्ट ट्रू है देन माई मैप विल बी अ फंक्शन. ये थियरम करने का फायदा क्या होगा पता है, कि जब कभी भी हमें कोई भी एक रिलेशन दिया गया रहेगा तो उसको फंक्शन चेक करने के लिए हम लोग डायरेक्टली इस थियरम का यूज करेंगे. ठीक है, तो थियरम क्या बोलता है, अ मैप इज अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल पॉइंट्स इन द डोमेन माई एफ इज डिफाइंड. यानी कि ये तो पहला ही कंडीशन हो गया ना, जो हम लोग ने फंक्शन के लिए कंडीशन किया था ना, दिस इज द सेम कंडीशन कि हम लोग फंक्शन के लिए क्या बोलते थे कि हर एक पॉइंट ऑफ द डोमेन के लिए वो डिफाइन होना चाहिए. यानी कि फंक्शन का पहला कंडीशन और ये थियरम का पहला कंडीशन सेम है. लेकिन सेकंड कंडीशन फंक्शन के लिए क्या होता है कि वी से कि एवरी पॉइंट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक आउटपुट. यहां पे मैंने क्या बोला, एंड द सेकंड कंडीशन इज व्हेनेवर यू विल हैव x इज सेम एज y देन योर f ऑफ x मस्ट बी सेम एज y. यानी कि जो सेकंड कंडीशन था कि देयर एग्जिस्ट यूनिक आउटपुट, देयर एग्जिस्ट यूनिक, अभी तो आपको ये नोटेशन पता है, यूनिक आउटपुट that is actually same as, that is actually equivalent to x same as y implies me f of x same as y. तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम लोग ये थियरम को एक बार और समझेंगे, इसका पूरा प्रूफ करेंगे और इसके रिलेटेड एग्जांपल करने वाले हैं कि इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है. बट फॉर नाउ एक बार वापस से रीड करेंगे और इसको थोड़ा याद रखने की कोशिश करो, बिकॉज एग्जाम के अंदर आपको प्रूव करने आने वाला है कि हाँ इट इज अ फंक्शन और नॉट, आपको चेक करना है. तो आपको सिर्फ यही थियरम यूज करना. क्या है थियरम, तो फंक्शन है, किस तरीके से चेक करोगे, तो पहले चेक करोगे कि फॉर एवरी पॉइंट इन द डोमेन योर मैप इज डिफाइंड. सेकेंड चीज है कि व्हेनेवर
आपका x इज सेम एज y, आपको ये प्रूव करना होगा योर एफ ऑफ x इज सेम एज एफ ऑफ y। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इस थियरम को डिटेल में प्रूव करेंगे। ठीक है, बट फॉर नाउ आई थिंक इट इज़ इनफ। मैं अभी आपको ये नोट्स सेंड करता हूँ। अगर लेकिन किसी को पहले कुछ डाउट रहेगा तो दे कैन शेयर, दे कैन आस्क मी। अच्छा, यहाँ पे कोई लिख रहा था, मैं पहले ही बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे दिखता नहीं, नो इशू, बट किसी को कोई डाउट है तो जस्ट लेट मी नो, अगर कोई डाउट है तो।